Okay, so diagonal matrix, and so diagonal matrix means, so here see one example. Suppose I have a 5 0 0 0 -2 0 0 0 1। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास इधर क्या है, ये एक डायगोनल है। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। सो अगर हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जहाँ पे जो है डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स अदर एलिमेंट्स, सी we have a name, this is diagonal elements, and these all are the elements, rest of diagonal elements are called non-diagonal elements. Okay, so here we have a diagonal elements and non-diagonal elements. So in diagonal matrix, if each non-diagonal elements of square matrix is equal to 0, the matrix called diagonal matrix. Okay, see here, if each non-diagonal elements of square matrix is equal to 0, the matrix called diagonal matrix. Okay, so diagonal elements and non-diagonal elements, have you understood these two things, diagonal elements and non-diagonal elements? Girls, please respond to me. Yes, sir. See, scalar matrix. In a scalar matrix, see here, first see the example. If I have a 6 0 0 0 6 0 0 0 6, so ये दोनों मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, कोई मुझे बता सकता है? Anyone? What are the difference between those two matrices? Okay, so here the difference is in diagonal elements, all diagonal elements are same. What? In diagonal matrix, the diagonal elements are not same. In scalar matrix, all diagonal elements are same. So this is the difference between those two matrices. So here we can write a definition. If each non-diagonal elements of a square matrix, if each non-diagonal elements of square matrix is equal to 0, and diagonal elements are same, diagonal elements are same or equal to 1 or equal to each other, diagonal elements are equal to
each other. So in scalar matrix there are two conditions: the non-diagonal elements will be 0 and diagonal elements will be same. So diagonal matrix and scalar matrix. Now unit matrix or identity matrix, both name are same. So unit matrix and identity matrix. First see the example. If I have a 3 by 3 matrix, 1 0 0 0 1 0 0 0 0. So can anybody tell me what are the difference between these two matrices? Anyone? So here the difference is in diagonal elements. If the diagonal elements are 1 1 1, at that time that matrix is called identity matrix or unit matrix. Okay, so here see these three examples: diagonal matrix, scalar matrix, and unit matrix. There are little bit difference between each other. So in diagonal matrix, the diagonal elements are any number, can be. In scalar matrix, the diagonal elements are same or equal to each other, and in unit matrix, the diagonal element must be is equal to 1. Okay, so these are the differences between them. So I can write the definition of unit matrix. If each non-diagonal elements of square matrix is equal to 0 and the diagonal elements are equal to 1 and the diagonal elements are equal to 1. So these are three types of matrix, and in these three matrix there are little bit difference between them. So just keep in mind these differences. Now you can see the same condition. यहाँ पे भी 0 0 है, यहाँ पे भी 0 0 है, यहाँ पे भी 0 0 है, बस द डिफरेंस इज इन डायगोनल एलिमेंट्स. सो अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 रहता है इसका मतलब ये यूनिट मैट्रिक्स है, और अगर सेम नंबर रहता है तो स्केलर मैट्रिक्स है, और अगर सेम नंबर नहीं रहता है तो डायगोनल मैट्रिक्स है. ओके उसके बाद ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. Triangular matrix. Okay, so in triangular matrix, see first example. In triangular matrix, suppose I have a matrix 2 3 4 and 0 3 2 and again 0 0 9. Okay, so here you can see here I have a 0 0. These non-diagonal elements are 0. What? These non-diagonal elements are 0 0. So ऐसी सिचुएशन में जहां पे 0 0 नीचे हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि यहाँ पे इसके अपर ट्रायंगुलर में आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको एक ट्रायंगुलर बनता हुआ दिखता है जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, और वो 0 नहीं है. क्या है? 0 नहीं है. यहाँ पे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है 0 नहीं है. तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर.
जहाँ पे अपर ट्रायंगुलर में कुछ वैल्यू होती है। ओके, जहाँ पे अपर ट्रायंगुलर में कुछ वैल्यू होती है, तो ये अपर ट्रायंगुलर होता है। उसके अपोजिट अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर को इस तरह लिख सकते हैं हम 2 0 0 और 3 4 0 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए एक ऐसा ट्रायंगल जहाँ पे ये लोअर ट्रायंगल जो है, ये हमारे लोअर ट्रायंगुलर में क्या है, एक कुछ तो वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सो इसके लिए एक कंडीशन है, इसके लिए भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए? क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, अगर हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है AIJ मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी पागल किसको लिखे ओके। अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ इज सेड टू बी और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कंडीशन क्या है इसकी? कंडीशन ये है इफ AIJ इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल, ये इसका मतलब है फॉर ऑल वेयर I ग्रेटर देन इज इक्वल टू J। अब इसका मतलब थोड़ा समझो आप कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जहां पे AI इज इक्वल टू 0 होगा और ये AI इज इक्वल टू 0 कब होगा, जहां पे I इज इक्वल टू बड़ा होगा J के कंपेयर में। अब देखो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ये एलिमेंट्स है, ये क्या है 1 1 है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये 0 नहीं होगा। 0 किस कंडीशन में होगा, जहां पे I बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखो ये इसका पोजीशन देखो, ये एलिमेंट्स का पोजीशन देखो, इसका पोजीशन क्या है A21 है। यहाँ पे क्या है I बड़ा है, क्या है I बड़ा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे 3 2 है। मगर यहाँ पे अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा A13, यहाँ पे क्या है I की जो वैल्यू है 1 है। तो ऐसे कंडीशन में ये 0 नहीं होगा। तो ये जो AI इज इक्वल टू 0 वेयर I ग्रेटर देन J, दिस ये कंडीशन समझ में आया आपको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कंडीशन? यस सर। ओके, गुड। सो सी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर में क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, मेरी मैट्रिक्स क्या है AIJ है, इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वेयर इफ AI इज इक्वल टू 0 है, कब, जब मेरा I जो है छोटा है J से। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं अगर 2 की, तो ये इसका पोजीशन क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, क्या है थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब यहाँ पे क्या है I बड़ा है मेरा और J क्या है छोटा है। तो ऐसे कंडीशन में ये 0 नहीं होगा। 0 कब होगा, जब I छोटा रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी पोजीशन क्या है 1 3 है। अब देखो I छोटा है J से, तो ये कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए एक ये कंडीशन है AI इज इक्वल टू 0 वेयर I लेस देन J। okay, so this is the upper triangular matrix and lower triangular matrix. Now we are going to see equality of matrix.
Okay, so equality of matrix, wait, okay, equality of matrix, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, हमें बस वो देखना है। ओके, सो हियर सब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में भी, अब इक्वलिटी मतलब वहां पे दो मैट्रिक्स का कंपैरिजन है। सो मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। मैट्रिक्स ए, सपोज एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स ए एंड बी are said to be equal, are said to be equal if, condition आ गई यहाँ पे, the condition is A and B are the same order, A and B are the same order, are the same order. Okay, the second condition is the corresponding elements of A and B should be same, the corresponding element should be same. Okay, अब एग्जाम्पल अगर मैं लूं, एग्जाम्पल, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है मेरे पास। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A जिसका एलिमेंट्स A B C D है, और एक एलिमेंट्स है मेरे पास B जिसका एलिमेंट्स क्या है P Q S T। अब अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स दोनों इक्वल कब होंगे, दो क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंडीशन को जो है ये फुलफिल करता है, उसके बाद सेकंड कंडीशन को क्या करता है, फुलफिल करता है। फुलफिल कब करेगा, जब A P के इक्वल होगा, B Q के इक्वल होगा, C S के इक्वल होगा, D T के इक्वल होगा। तो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल में ये बोल दे कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, दोनों के इक्वल होंगे। तो A इज इक्वल टू P होगा, B इज इक्वल टू Q होगा, और C इज इक्वल टू S होगा, और D इज इक्वल टू क्या होगा, T होगा। तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स था। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में देयर आर टू कंडीशन वेयर द मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B both matrix has same order and the corresponding element must be same. Okay, so after equality of matrix, sum of two matrices, अब दो मैट्रिक्स का सम कैसे करते हैं। ओके, मैं पूरे बेसिक से लेके जा रहा हूँ, मे भी हो सकता है बहुत सारे लोग जो है सारी चीजें जानते हो। गर्ल्स 1 मिनट बचा है, मैं जो है वापस रीजॉइन करता हूँ, क्योंकि 1 मिनट बाद जो है वापस ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है।